Good morning, students. Myself Deepali Harchande. Today we are going to start with the fifth lesson, that is Contemporary India, Good Governance. Till yet we have completed till 4 chapters. 4 chapters I have uploaded 10 parts of the lesson number 4. Now we are going to start with the fifth chapter. This is the first part of this chapter. Let's see about the chapter. Now just we'll see the glimpse of the lesson, what we are going to learn in this particular lesson. We are going to learn what is governance, then what is the role of government in citizen administration and how they can play that role. That things we are going to learn in this session. After that, we are going to learn about evolution and meaning. Whose evolution? The administration evolution. That things we are going to learn. After that, we are going to start with the what is civil society. Okay. In that civil society, we are going to learn about various governmental, non-governmental unions and other things. Afterward, we'll learn about what is good governance or what does it mean by good governance and the meaning and definition of good governance. We'll learn about participatory. See, these all are the elements of that lesson. Then what does it mean by good governance and what all the things or what all things has been included in good governance, that is accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, participatory and consensus oriented. One by one we are going to learn all these points. Then rule of law. Afterward, the aspects of rules of law, that is economic recovery, safety and security, political recovery, access to public services. Then transparency, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability. Now we'll start with one by one all these points. Just I told you that what we are going to learn in this lesson or in this particular session. I don't think so that I will cover all the points which I have mentioned in this PPT, but let's try. I'm going to try to cover at least half of this part. Yes, in this lesson we are talking about governance, we are talking about government, fine, and the citizen administration. Now what does it mean by governance? Governance means a government which is ruling over the country, or the country they have been decided a particular structure of ruling the government, and that thing is known as the government, and that government run under the governance. Fine. Next is the role of government in citizen administration. See, in the last chapter, in the fourth chapter, we have learned about the structural dimensions and psychological dimensions. Okay. See, what we have learned in structural dimension, that government has been given a particular structure. We can say that our Indian government has adopted the constitutional
type of government system, and in that constitution we have a particular structure of government or of various government offices. So that structure, as well as the psychological dimension and structural dimensions, we have learned in the fourth lesson. Now structure means what we have learnt in that, the local body means from the local body government till the Lok Sabha and Rajya Sabha. That is the hierarchy of the government, or of the, we can say, governance, we can say. So that hierarchy which we are following and which is mandatory to each and every citizen of the India, each and every citizen of India uh, is mandatory to follow. Fine. हमने क्या देखा था स्ट्रक्चरल डायमेंशन में, कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक गवर्नमेंटल बॉडीज़ दी गई है. हायरार्कियल मीन्स व्हाट, पहले तो है लोकल बॉडी गवर्नमेंट, आफ्टर दैट the district government, then state government, after that the central government, and as we know that we have a federal style of government system. Federal means central government and the state government. So that government system, we can say, we have adopted, and in that this is known as structural dimension. But here we cannot imbibe the emotion, we cannot imbibe the national integration in the minds of Indian citizen. So who imbibe the integrity, national unity in the minds of Indian people? The psychological dimension. Now in that psychological dimension, what we have seen, we have national emblem. How we can imbibe that psychology, that emotional, that expressions towards nation? We have few things, for example, for instance, national flag, national anthem, national emblem, national bird, national animal, and so on. So these things tells us about the unity in diversity. Fine. So that things we are going to learn in this lesson also, in the lesson number 5. Here they have mentioned again the system of government. Very first question they have asked here, means in the textbook we have that question, what is government, what is governance, and what should be the role of government in citizen administration? Should they play any role, and how they can play that role? Now we have to solve these questions. Now very first is, see, we want government administrative system or government administrative machinery. For what purpose? See, for daily basis we have a few needs. Fine. For example, for the Aadhaar card, PAN card, ration card, we may have complaints against the local government for not repairing or not maintaining roads, clearing the garbage. Means there are a number of problems in the society, and we want to complain with a government, or with a government body or machinery of government. अगर हमारे हिंदी में थोड़ा बोलती हूँ, अगर हमारे यहाँ कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि रोड का काम नहीं हुआ है, गार्बेज जो डिस्पोजल है वो काम नहीं हो रहा है हमारे एरिया में, और कुछ अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है कि पानी नहीं आ रहा है, अगर जैसे कातरज में लास्ट ईयर एक घटना घटी थी, कातरज का जो नाला है वो पूरा फट चुका था, और उससे जो पानी आया था उसकी वजह से बहुत सारे घरों में वो पानी घुसा था. अभी तक उन्होंने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने वहाँ पे वॉल नहीं बिल्ड की है और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है वॉल का. जो नाला बहता था वो वैसे ही अभी भी बह रहा है. अभी हमें यहाँ से क्या सीख लेनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी, उसके वजह से पानी पूरे सोसाइटीज़ में घर में घुसा था, और उसकी वजह से 15 दिन तक लोगों का जो डेली बेसिस का जो हम बोलते हैं केओस है,
डेली बेसिस का जो वर्क है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ था, फिर भी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ली है। तो अब क्या है, ये जो कंप्लेंट है हमें कहाँ पे तो दर्ज करनी है। तो ये कंप्लेंट हम कहाँ पे दर्ज करेंगे, ये लोकल बॉडी में। लोकल बॉडी मतलब जहाँ पे हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पे है, हमारे यहाँ पे है। और ये किसके खिलाफ करेंगे हम, कि अगर जो हमारा लोकल बॉडी मतलब जो हमारा कॉरपोरेटर है उसने क्या करना चाहिए, इस मसले में ये जो प्रॉब्लम हुआ था क्रिएट, उस पर ध्यान देना चाहिए और ये मसला सॉल्व करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसने नहीं किया है, जो कोई नगर सेवक है, कॉरपोरेटर है, उसने नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो काम है वो हमें करना पड़ता है। दूसरा है कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और अभी तो बैंक के लिए केवाईसी कंपलसरी है। केवाईसी मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड हमें कंपलसरी वहाँ पे अपडेट करना है। देन ओनली वी कैन डू एनी ट्रांजैक्शंस, अगर हमें बैंक से ट्रांजैक्शन करने। अभी तो कोरोना चलते हुए पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ था, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा लोगों ने इंसिस्ट किया था, और उससे ही वो ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी अगर मैं डीमार्ट में जाती हूँ, रिलायंस में और किसी भी स्टोर में जाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कार्ड स्वाइप करूँगी इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी। मतलब मैं पैसा नहीं दूँगी, उसके वजह से मैं उसके बदले क्या करूँगी, मैं कार्ड स्वाइप करूँगी। क्यों? क्योंकि हमें किसी को टच नहीं करना है। ये पैंडेमिक सिचुएशन में हमें क्या करना है, जितना हम खुद का ख्याल ले कर सकते हैं उतना ख्याल लेना है। तो उसकी वजह से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट ने दिए हुए हमें सारे एक हम बोल सकते व्हाट वी कैन कॉल्ड इट, इवन बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वी वांट, फाइन। सो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मशीनरी है, वहाँ से ये सब क्रिएट होता है और ये हमें सब लगता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए गवर्नमेंट का, फाइन। वो हमें स्ट्रक्चर मिल गया है। नाउ व्हाट दे हैव गिवन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्या है, हाउ द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज रिस्पॉन्ड to these various demands, need and requirements of citizens will determine the success or failure of the government administration. See students, if you have textbook, take out textbook, page number 48. I have started the introductory part here. Okay, next, just a minute. तो हमारे ये नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, ये citizens के requirement है. Citizens means what? We are common peoples and we have that needs and requirements. Okay, and that purpose we have a particular government administration system. Now next they have given, since early 1980s there has been an increasing focus on the performance of the public administration institution. Just a minute, students. Yes, it is going on. Public administration institutions, to ensure performance, it is necessary that values like accountability, responsibility, transparency and citizens feedback need to be introduced in the realm of public administration. Now the next question is, yes, we have structure, we have structural dimension, we have government, but who control that? Who will keep watch on that government? Obviously, we common people can watch, we common people can control the administrative system. How? That we can approach to the governmental offices, we can complain against any corporator, we can complain against if a particular work has not been done in particular area. So in this way we can control on the governmental offices or administration system of government. हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे कंट्रोल रख सकते हैं। ये
डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, और हमने क्या किया है, रिप्रेजेंटेटिव हमने ये करके दिया है, इलेक्ट करके दिया है। सो इलेक्शन में सबसे पहले वोटिंग का जो राइट है वो कॉमन पीपल्स को है। तो हमने क्या किया है, हमने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमने भेजे हैं कहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट में है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट, विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, पंचायती राज, काउंसिल्स, नगर परिषद, नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या है, ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है। तो यहाँ पे कौन है, सब हमारे ही जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ किए हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव उसमें है, और ये रिप्रेजेंटेटिव के उनके थ्रू हम ये सब काम करवा के ले सकते हैं। अब वो परफॉर्मेंस कैसा है, वो काम करते हैं या नहीं, वो उनको सक्सेस मिलता है या नहीं, तो उस पर वॉच किसका है, हम लोगों का है, मतलब कॉमन पीपल्स का। अभी उन्होंने क्या दिया है, अब नाउ दे हैव गिवन टू एंश्योर परफॉर्मेंस इट इज़ नेसेसरी दैट वैल्यूज़ लाइक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन्स फीडबैक नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन द रिलीम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें अकाउंटेबिलिटी मतलब कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। अभी देखो मेट्रो का काम चल रहा है, इन द tenure of Modi government they have started the metro, what we call it, मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है, तो मेट्रो का काम चल रहा है। अभी अकाउंटेबिलिटी में क्या आएगा कि मेट्रो के काम के लिए इंडिया ने कर्जा लिया है, हमने जर्मनी से कर्जा लिया है, एंड नाउ वी हैव दैट मनी in the form of crores of rupees, we have that money. And accountability means what, how much work has been done, how much work is pending, within how much years the work will get over. So that accountability, that things we have to see, we have to check, we have to keep check on all that work. Just now I have read one news in newspaper that Shivaji Nagar, from Shivaji Nagar till Swargate, they have completed the underground road or tunnel road. That work of metro has got over, and the engineers, they are very happy that within a time period, means whatever time period they have decided for that work, they have completed that work. Okay, so they are very happy. Means what, accountability means what, we are keeping check on that. हमें पता है कि इतना काम हुआ है, इतना काम होना बाकी है, इतना काम करने के लिए हमें इतना टाइम लगेगा, और उसमें कितना खर्चा होगा, ये सब क्या है, हमने चेक करना है हम लोगों ने। तो वो हो गया अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यस, इंडियन गवर्नमेंट दे हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टर्स, देन दैट कॉन्ट्रैक्टर्स दे हैव लेबर्स, मीन्स already we have given responsibility to few engineers. Okay, this is the example of metro. Now if we see the example of Indian administration system, last chapter we have learned about the IPS officers, MPSC, UPSC of after MPSC and UPSC exams, we have many officers in the government bodies. Fine, so that all means, just a minute, let me clear this point of responsibility. Yes, at the administrative level there exist all India administrative cadre, IAS, IPS, IFS, IRS, ये जो पोस्ट है उस ऑफिसेस में, उस पोस्ट में क्या है, एग्ज़ाम के बाद लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो स्टेट कैडरे भी है, सेंट्रल कैडरे भी है, और लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे खुद की सर्विस दे सकते। अभी ये जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा जो सरकार का काम है, वो सब उन्होंने काम करना है, उन्होंने खुद को सर्व करना है
हमारे इंडिया के लिए। तो ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाली है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी. Transparency means whatever officers, means whatever work is done by officers, whether the work is done by transparency or not. Transparency मतलब ये जो कुछ ऑफिसर्स काम करते हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेस में जो कुछ काम होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है. अगर आप छोटे छोटे ऑफिसेस में भी जाओ गवर्नमेंट के, आप अगर कुछ 50 रुपये, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ जब तक नहीं देते तब तक आपका काम नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये कास्ट सर्टिफिकेट, मराठा आरक्षण मिला है, अभी उस पर स्थगिति है. सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे लाया है, स्थगिति है. बट बिफोर दैट आई वेंट टू द ऑफिस, इन गवर्नमेंट ऑफिस, to take my caste certificate. I belongs to Maratha category and I will get the SCBC caste certificate. So at that time, yes, I went there. I have filled all the forms and other. I have just attached the documents and other things. But the people, those who are working there, they were not happy with all that things. After that I came to know that they want something, and that is why they are not ready to complete my procedure. So I have given them something, and after that very happily they have done my work. They have completed the procedure of that caste certificate. So see, actually I am against to it, fine. But if we don't have time, if we means I went to my village, and because of the service we cannot get time to do all the procedure of government procedure. So that time also we have to act like that. हमें ये act करना पड़ता है, हमें ये सब करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहाँ पे. लोग क्यों काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिसेस में? क्योंकि उनको मिलता है पैसा वहाँ पे. Other than their payment, see, this is my personal opinion. I don't know whether you have got that experience or not, but I have got this experience, personal experience. That's why I'm sharing this experience. So transparency कहाँ पे है? ये सब लोग, उनको बहुत सारा उनको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, फिर भी they are trying to gain more and more money. They are trying to earn more and more money. Fine. So here, because of this less transparency in administrative system, we can say our administration system is not running smoothly and properly, because very few people, they have hold on the administrative system, they have hold on the government, and because of them we common people cannot do anything. हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके हाथ में ये सब सत्ता है, उनके हाथ में ये सब पावर है, पूरा पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में. तो वो जैसा करते हैं वैसे ही काम होता है गवर्नमेंट ऑफिसेस में. आपके ऊपर ध्यान भी कोई नहीं देता. अगर आप कुछ देते नहीं तब तक वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते. फाइन. तो ये ट्रांसपेरेंसी हमारे गवर्नमेंट में नहीं है. तो ये ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए. फाइन. मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ ये ट्रांसपेरेंसी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. देन सिटीजन्स फीडबैक नीड टू बी इंट्रोड्यूस द रिलम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अभी सिटीजन्स के फीडबैक भी लेना ज़रूरी है. हम मोर्चे करते हैं, आंदोलन करते हैं, एजिटेशंस करते हैं. क्यों करते हैं? इसी के लिए कि हम नहीं है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. इसलिए लोग क्या करते हैं, एजिटेशन, मोर्चा, मूवमेंट जो करते हैं, इसीलिए. तो ये क्या है? सिटीजन्स का फीडबैक है. अभी मैं ये यहाँ पे बोलने वाली हूँ कि अगर हमें ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक नियम लागू किया है. अभी ये लॉ बना है कि नहीं, आई डोंट नो. RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब अगर मुझे अगर पूना में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका कामकाज कैसे चलता है वो मुझे जानना है, तो मैं एक एप्लीकेशन दूंगी और राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर मुझे वो पूरा सिस्टम मिल जाएगा.
कि ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे रन होता है, वहाँ पे कैसे काम चलता है, इसके अंडर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. मतलब सी, कॉरपोरेशन, देन नगर परिषद, नगर पालिका, एंड district government, state government, they have their own limitations, they have their own responsibilities. Fine. So what kind of work is going on there, कौन सा वर्क वहाँ पे चलता है, कौन से कामकाज वहाँ पे चलता है, ये अगर मुझे चाहिए तो RTI, मतलब सॉरी नॉट RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक नया लॉ पास हुआ है शायद. लेट मी सर्च इट वेदर इट हैज़ गॉट पास्ड और नॉट. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. सो उसके अंडर हमें क्या मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. और ये एक चेक रहता है किस पे, ये जो ऑफिसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज, इस पे एक चेक रहता है, हम कंट्रोल करते हैं वहाँ पे. जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक. ये हुआ है क्योंकि मुझे पता है इसके लिए अन्ना हज़ारे एंड केजरीवाल, ये जो दो लोग थे, उन्होंने एजिटेशन किया था मुंबई में भी, दिल्ली में भी, और वो मूवमेंट के बाद ही ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक लॉ आया था. तो उसके अंडर हमें क्या है, हम चेक कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट पे, गवर्नेंस पे एक चेक रख सकते हैं. सी वंस विल गो फर्दर ना, दैट टाइम आई विल टेल यू. यस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यस ये हुआ है 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड रूल्स. तो क्या है यहाँ पे, अगर मुझे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का इन्फॉर्मेशन चाहिए और कैसे कामकाज होता है ये भी सब चाहिए, और मैंने अगर एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन पे कुछ नहीं हो पा रहा है आगे की प्रोसीजर, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में क्या कर सकती हूँ, वो सब इन्फॉर्मेशन मांग सकती हूँ, और उसके खिलाफ में क्या कर सकती हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ. तो ये रूल आया है, ये लॉ पास हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हुआ है उसका. सी, एक्ट, प्रोविजंस एंड लॉज, अमेंडमेंट ऑफ लॉज वगैरह, ये जो सब है वो हमने पढ़ा है. तो ये रूल आया है अभी. नेक्स्ट, अभी यहाँ तक समझ में आया. हमें अकाउंटेबिलिटी चेक करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमें ध्यान देना है, ये जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके ऊपर. Then what is the role of state towards its citizens? Last lecture, in the last previous topic, in the fourth topic, we have learned about the role of state. Okay, even in 11th standard also you have learned about the role of state. Fine. So it is a very narrow role described as POSD, CORB, and broader role that included all three branches of the government. Now what are three branches? Executive, legislative and judiciary. ये three branches आपने 11th standard में पढ़े हैं. Now legislative means what? A particular body, they are preparing laws, they are making acts, they are amending acts. Amending means what? They are चेंजिंग. अमेंड को हम बोल सकते हैं कि दुरुस्ती की जाती है. अगर प्रॉपर्टी का एक लॉ है, प्रॉपर्टी के लॉ में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंड करके क्या नया लॉ आया कि जो प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, तो उसमें जैसे बेटे को मिलता है उतना ही समान हक बेटी को भी मिलना चाहिए. तो ये नया लॉ बनाया गया, उसमें अमेंड किया गया, अमेंड म्हणजे चेंजेस किया गया, और वो चेंज करके वो लॉ पास हो गया. वो लोकसभा, राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, और वो क्या हुआ, एक लॉ बन गया. तो वो एक्ट बना, लॉ बना, प्रोविजंस बना. ये जो कुछ कामकाज है वो कौन करता है, लेजिस्लेचर करते हैं. उस पर इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव कौन करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडी. हमने क्या देखा, देयर आर थ्री ब्रांचेस, थ्री बॉडीज. लेजिस्लेटिव का काम क्या है, टू मेक न्यू लॉ, टू मेक चेंजेस इन द लॉ, और टू अमेंड द लॉज और प्रोविजंस और एक्ट्स. फाइन. सेकेंड थिंग, एग्जीक्यूटिव. कौन एग्जीक्यूटिव करता है, एग्जीक्यूटिव कमीशन और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लॉ हुआ है कि मास्क अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको 500 रुपीज़ क्या है, फ़ाइन है. ये लेजिस्लेचर ने एक बना दिया, लॉ बना दिया.
रूल्स एंड लॉ के इसमें, जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन, तो उस पर अमल कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। ये क्या करेगा? सब पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अगर आपको ऐसे सिटीजन्स मिलते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनके पास से आपने क्या किया है, आपको उन्होंने पनिश करना है। उनके पास से 500 रुपीज़ उनको पनिशमेंट के हिसाब से उनको दंड देना है। फाइन। तो ये अमल किसने किया? ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो एग्जीक्यूट करते हैं, काम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी जुडिशरी, थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? जो पार्ट है वो जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? अगर मैंने मास्क नहीं पहना और अगर किसी ने रूल तोड़ा है, सिग्नल तोड़ के गया है, तो जुडिशरी के क्या करते हैं? ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करते हैं, उसमें हमारे जो गाड़ी है उसका फ़ोटो निकालते और भेज देते। ये जुडिशरी जो जस्टिस है और जो लॉ के ऊपर जो काम करता है, मतलब लॉयर्स है, तो वो उस डिपार्टमेंट में वो जाता है, जुडिशरी डिपार्टमेंट में, और वहाँ से हमें कॉल आता है और वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है? हमारी जो गाड़ी है वो छुड़वा के लेनी पड़ती है। अगर मैंने मास्क नहीं पहने तो मुझे वहाँ पे जाके पैसे भरने पड़ते। फाइन। तो legislative making law, executive to execute to implement the laws, and third is judiciary, means if one's rights has been violated मतलब अगर वो violated को क्या बोल सकते हैं हम? सी, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर वो फंडामेंटल राइट किसी भी हिसाब से कोई भी मुझसे छीनता है तो क्या होता है? वो वायोलेशन होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है लेकिन लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहाँ पे जाता है? जुडिशरी के कस्टडी में जाता है। फाइन। मतलब to make law, to implement law, and to execute law, and third is if there are any problem, then jurisdiction is there that you can approach over there. That three we can say machineries or branches of administration system we have to learn. Already you have learned it. Fine. Then also you have learnt about the administration brought in changes in this traditional role. We noted that in development administration the citizens play an important role in public administration. Just now I have talked. Now my next point is not only government, the non-state actors or non-governmental organizations, voluntary organizations are also working साइमल्टेनियसली विद गवर्नमेंट बॉडीज़। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, आजकल गवर्नमेंट के साथ साथ ही जो NGOs है ना, जो गवर्नमेंट के नहीं है लेकिन वो खुद से वो काम करना चाहते, तो वो भी काम करते, वॉलंटरीली दे आर वर्किंग। फाइन। अभी ये देखो, पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट ने जितना हो सका उन्होंने काम किया, फिर भी जो NGOs थे उन्होंने भी फूड सप्लाई किया, पानी सप्लाई किया, जो मजदूर लोग थे उनके लिए उन्होंने उनके खाने पीने की व्यवस्था की। मतलब वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। फाइन। सो the word used to describe this cooperative efforts of the government and non-governmental bodies in public administration is governance. Abhi governance means what? Administration system. Second, non-governmental system means governmental system, non-governmental system. Third, voluntarily organization. They all are coming together and they are administrating our government. That is known as governance. ओके, हिंदी में थोड़ा बोलती हूँ। जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जो गवर्नमेंट के नहीं है, और जो वॉलंटरी ऑफिसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब एक साथ आके वो क्या करते हैं? हमारा गवर्नमेंट रन करते हैं। ये जो पूरा हमारा सरकार है वो चलाते हैं। इंडिया का ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। फाइन। This is a broader view of public administration. Thus, governance is broader than government.
गवर्नमेंट पे के ऊपर जाकर कौन है, गवर्नेंस है. It includes not only the formal institutions of a government, that is legislative, executive, bureaucrats. Bureaucrats means judiciary, but also informal institutions. Informal means, as I told you, that NGOs, civil society organizations, private organizations, they are also a part and parcel of governance. Fine. अभी ये देखो नया है, इवोल्यूशन एंड मीनिंग. अब ये गवर्नमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, इवॉल्व मीन्स कैसे उत्क्रांत हुआ, देन उसका सिस्टम कैसे चेंज होने लगा, सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से नए पॉलिसीज़ आए, तो उसका सब मीनिंग वगैरह जो है हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे. तो पेज नंबर 48 पे सिर्फ हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, गवर्नेंस मतलब क्या पढ़ा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट्स पढ़ा है, और जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इतना हमने पढ़ा है. अभी इवोल्यूशन एंड मीनिंग विल लर्न इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन.